الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أخاف أهل المدينة خاف الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفهم ولا عدلا. قابل قدر پیارے ساتھیوں، جو حضرات موجود بیٹھے ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. تو میرے سے پہلے جو ماشاءاللہ میرے پیارے نے بیان کیا، تو اس نے یوں سمجھو کہ عقدے کھول دیے. سبحان اللہ. عقدہ کیا ہے؟ ایک حقیقی سی مثال ہے کہ کھانا کسی چیز کے اندر ہے، اس کے اوپر ڈھکن ہے، تو جب ڈھکن اتار دیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہے. انہوں نے عقدے کھولے بہت پیارے انداز میں. بس اتنا ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میں باتیں کرنے کو تو بہت ہوتی ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، ساتھیوں کی تھکاوٹ کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. لیکن جو عاشق ہوتے ہیں انہیں تو معلوم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. عاشق تو وہ کسی نے کہا کہ عرض کیا کہ کسی بزرگ کے پاس گیا نا، تو اس سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائے میرا یہ کام ہو جائے. تو کام کوئی مشکل تھا، تو بزرگوں نے کہا اچھا ایسا کر کہ سمندر کے کنارے بیٹھ جا اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی سمندر کا باہر پھینکنا شروع کر دے، سمندر کو خشک کر. تو اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا. کسی گزرنے والے نے پوچھا ارے بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سمندر خشک کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا سمندر ہی کبھی خشک ہوئے؟ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن عاشق بھی کبھی تھکے نہیں. خشک ہوتا تو نہ ہو، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. تو یہ جو ہے اس میں بھی ایک ذہن بنایا گیا کہ ہمارا ذہن ایسا ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، لیکن میری عادت یہ ہے کہ مثلا ابھی حضرت نے بیان کیا نا، سمجھ آئی اشعار کی بھی، فارسی کی بھی، عربی کی بھی، لیکن آپ لوگوں کو اچھا لگا، بھلا تو لگا ہوگا، لیکن میرے خیال کے مطابق ساری باتیں یاد نہیں رہتی. کوئی باتیں یاد رہ جاتی، کچھ باتیں، ساری باتیں یاد نہیں رہتی. میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق واقعہ بھی آپ نے سنا، ان کے متعلق واقعہ آپ لوگوں نے سنا. تو ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک عورت جو تھی نا، میری بات کو ذرا مہربانی کرنا، حضرت تو جگا لیتے تھے، میں تو منت ہی کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس کا بیٹا گم ہو گیا، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کی مرید تھی. تو ادھر گئی کہ پیر و مرشد مہربانی فرمائے میرا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا، 6 ماہ ہو گیا ملتا نہیں. تو حضرت خاموش ہو گئے. ذرا ایک ایک لفظ کو نوٹ کرنا ہے. حضرت خاموش ہو گئے، شیخ چپ ہو گئے. تو عورت جو تھی نا، مرید تو تھی لیکن دل میں غصہ آیا، کیونکہ پیروں کے مرید ہوتے ہیں، لیکن جب اپنی بات منوانا چاہیں، بات نہ مانی جائے تو پیر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں.
हाँ हाँ, ये पक्की बात है। तो गुस्से में आ गई कि मेरा बेटा गुम हुआ। हालांकि चाहिए तो ये था कि मुर्शिद को अजीज समझती, बेटा जाता है तो जाए, मुर्शिद पर ईमान मुकम्मल होता। लेकिन वो गुस्से में आ गई कि ये पीर कैसे हैं कि मेरा बेटा गुम हुआ, उन्होंने दुआ भी नहीं की, ना कोई हिसाब किताब किया, तो चुप करके चली गई। फिर बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं, सभी लोग नहीं मानते। कुछ लोग जो है वो देख कर सब कुछ फिर भी नहीं मानते, कुछ ऐसे भी हैं। जैसे हजरत ने फरमाया ना कि अल्लाह के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने ये बातें बताई, सदका वाली और हदिया वाली बात याद है ना आपको? अभी अभी आपने तरोताज़ा वाक़या सुना है। तो ये तो बात किसी को समझाने की, बहस करने की जरूरत नहीं। जो समझदार है, जो जानता है, वो कुरान पढ़ता है, उसको पता होता है कि अलम तरा अलम तरा अलम तरा, महबूब तूने देखा नहीं, महबूब फला वाक़या यूं पेश आया, तूने देखा नहीं, कौम आद के साथ क्या हुआ, तूने देखा नहीं, कौम समूद के साथ क्या हुआ, तूने देखा नहीं, अबरा वाले जो थे वो हाथियों वाले, उनके साथ क्या हुआ, क्या तूने देखा नहीं? अल्लाह फरमा रहे तूने देखा नहीं। हालांकि ये भी तो था, ये भी तो था कि क्या तूने सुना नहीं? जो वाकयात गुजर चुके, उनके मुतल्लिक कायनात के खालिक यूं फरमाते कि मेरे महबूब तूने सुना नहीं, ये वाकया भी आपसे पहले हो चुका है, तूने सुना नहीं। लेकिन अल्लाह यूं नहीं फरमा रहे, अल्लाह फरमा रहे क्या तूने देखा नहीं? उधर मतलब क्या कि जितने वाकयात हुए हैं वो आपकी निगरानी में होते रहे हैं, आप देखते रहे, आप मौजूद थे, आपको पता था सारे वाकयात का, सारे वाकयात को आप जानते हैं, तुम मौजूद हो। कौम समूद बर्बाद हो रही थी तब भी तुम मौजूद हो, कौम आद बर्बाद हो रही थी तब भी तुम मौजूद हो। तुम तो हर जा मौजूद हो, जैसे तुम्हारा अल्लाह मौजूद है तुम भी मौजूद हो। क्या तूने देखा नहीं? बार बार ये लफ्ज आता है। अगर मुकद्दर में हिदायत हो तो एक लफ्ज ये काफी है समझने के लिए। अगर हिदायत नहीं है फिर बार बार कुरान पढ़ोगे फिर भी समझ नहीं आएगी, फिर भी इंसान वहीं के वहीं अटका रहेगा। तो बात यह है कि औरत गुस्से में आ गई, वो मुरीदनी शेख जी की मुरीदनी गुस्से में आ गई। तो भटकाने वाले बहुत होते हैं, उन्होंने कहा आप इस पीर के पास आई हैं, उसने आपकी बात तक नहीं सुनी, ये तुम्हारा कैसा मुर्शिद है? आओ तुम्हारा बेटा गुम हुआ है। बड़ा समझाने वाले होते हैं ना, तुम्हारा बेटा गुम हुआ है, हमें दुख हो रहा है सुनकर, तू तो माँ है, तेरा तो कलेजा फट रहा होगा। ये पीर कैसे हैं? हम तुम्हें एक हिंदू साधु के पास ले चलते हैं। उसको हिंदू साधु के पास ले गई, लोग सारे मिलकर। हिंदू साधु ने बीबी को कहा, जरा बात को समझना है कि अपना चेहरा जो है ये दुपट्टे के साथ छुपा लो। उसने छुपाया, उसने पढ़ाई की, अपने हिसाब की। तो अब कहा क्या नजर आया? उसने कहा मेरा बेटा खेल रहा है मेरी आंखों के सामने, तो उधर कोई तमाशा वगैरह हो रहा है। फरमाया इनका बाजू पकड़ो। उस हिंदू ने कहा, साधु ने, इनका बाजू पकड़ अपने बेटे का। उसने बाजू पकड़ा और कहा आंखें खोल, दुपट्टा हटा। जब दुपट्टा हटाया तो बेटा हाथ में ही था। वो तो हैरान हो गई, जो काम मेरे मुर्शिद से नहीं हो सका वो काम तो हिंदू ने कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये शेख है और इसका मजहब सच्चा है। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी बात हो गई है, हम सारे मिलकर चलते हैं तेरे साथ, और जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पेश होते हैं और उनकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि हुजूर जो काम आप नहीं कर सके वो एक हिंदू ने कर दिया। सारे के सारे गए। जब पेश हुए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि अरे साधु हिंदू, ये बता कि तूने जो मंजिल पाई है ये कैसे आपको मिली? उसने कहा जी मैं तो इससे ज्यादा काम दिखा सकता हूँ। जी कैसे?
فرمایا کیسے؟ شیخ جی نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا کہ مجھے کسی برتن میں بٹھا دو، میں پڑھوں گا اور سارا کا سارا میں نظر نہیں آؤں گا، پانی پانی ہوگا۔ شیخ جی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، بہت بڑا سارا برتن لیا، اس میں اس کو بٹھا دیا اور کہا کہ پانی بن کر دکھاؤ۔ تو ہندو جو تھا نا وہ پانی بن گیا، پانی بن گیا۔ ہندو آخر میں بات کرنے والا ہوں لیکن غور سے سنیے گا، وہ پانی بن گیا۔ شیخ جی نے ایک کپڑا منگوایا اور اس پانی میں ڈال دیا اور ادھر رکھ دیا۔ ہندو سادھو پھر اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد شیخ جی نے فرمایا لو اب بڑے سارے برتن میں میں بیٹھتا ہوں، پانی بنتا ہوں، اور جب پانی بنے تو میرے اس پانی میں کپڑا ڈال دینا کوئی۔ شیخ جی جب ایسا ہوا تو کپڑا ڈالا گیا، پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آئے۔ جب اصلی حالت میں آئے ہندو سے کہا یہ جو تمہارے پانی جب بنا تھا تو یہ کپڑا ڈالا گیا تو اس کی خوشبو لو۔ وہ جو بھی اس کی خوشبو لینے کی کوشش کرتا وہ دھاڑے مار کر رونے لگتا کہ اتنی گندی بدبو ہے کہ ہماری جان نکلنے پہ آ گئی۔ اور شیخ جی نے جو اپنے پانی میں کپڑا ڈالا تھا وہ کپڑا فرمایا تو جو بے ہوش تھے وہ بھی ہوش میں آ گئے۔ ہندو سادھو ہاتھ بند کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے مرید کرو، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور اپنے ہندوؤں کو ہزاروں کی تعداد میں کہنے لگا کہ تم مجھے مانتے ہو تو اسی شیخ کا، اسی مرشد کا کلمہ پڑھو، اگر تم نہیں مانتے تو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو سنبھالو، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہاں ایک بات ہے کہ محنت کوئی بھی کرتا ہے اس کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور آج میں نا یہ محفل تو بہت قیمتی ہے نا، میلاد کی محفل ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم میلاد بھی مناتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ میں کوئی مہم نہیں چلا رہا یا کوئی تحریک نہیں چلا رہا، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ غیروں کے پاس جاتے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے نا ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچو، اور جو اللہ کا فرما بردار ہے اور نبی کا تابع دار ہے اور شیخ کامل کا وفادار ہے اس کو کہیں نہیں جانا چاہیے، وہ ایک در پہ بیٹھا رہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، در دردی تو نہ بن گولی ہک دردی، دردی تو در دردی تو نہ بن گولی ہک دردی، جے کر گولی ہک دردی بن سے مالک بن سے گھر دی۔ جمے رہو، لگے رہو اللہ کے محبوب کی غلامی میں۔ یہ جو معاملات ہوتی ہیں ان میں کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن آج کی اس محفل میں ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس میں آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو، اللہ کے حکم مانتے رہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نورانی ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپناتے رہو، اس پر چلتے رہو، اور دل جو ہے اس کے سوج اجاڑ اس حویلی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کی محبت کا چراغ اس دل میں جلاتے رہو۔ کام ہوتے جائیں گے، کام پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، آزمائشیں بھی آیا کرتی تھی، صحابہ کرام پر بھی آئی ہیں، اور جو لگے رہے وہ انہوں نے یہ جہان بھی آباد کر دیا اور آنے والا جہان بھی آباد کر دیا۔ جو چھوڑ کر بھاگ گئے ان کو قرآن کہتا ہے یہ تو بیچارے اوپر سے اور اندر سے اور تھے، یہ تو منافق تھے۔ اس لیے جو ہے آج محفل میلاد کی یہ سارا کا سارا ذکر اللہ کے محبوب کا ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے آقا و مولا کی جو ہے اولاد میں سے ہیں، تو جن کے بیٹوں کی تعریف کی جائے تو باپ تو خوش ہوتا ہی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب شیخ حضور غوث پاک کی تعریف کی جائے تو علی المرتضی شیر خدا بھی خوش ہوتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ شیخ کا ذکر تھا۔ ایک بات ہے کہ ہم جو ہے نا تھوڑا سا
जहन बनाएं आज की महफिल में कि थोड़ा सा ना वो जो हम शर्मिंदा हो जाते हैं या कोई बात नहीं करते, उलमा के कदमों में बैठकर, नेक लोगों के कदमों में बैठकर हमें, मैं कोई ये गलत बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी अभी मैं इस बात को ज़रा समझाना चाहता हूँ कि नमाज जो है वो हमें सीखनी चाहिए, नमाज आनी चाहिए। हर हाल में नमाज आती होगी तो कभी न कभी पढ़ने की तौफीक नसीब हो जाएगी। अगर नमाज आती ही नहीं तो पढ़ने की तौफीक कैसे नसीब होगी। अगली बात एक और है, हजरत ने बड़ी प्यारी बात की, मुर्दा जिंदे करने वाली। तो एक वाक़या बड़ा मशहूर है और दो चार किताबों में सबूत के साथ मिलता भी है कि करबला के बाद जब फिलफौर लेकर जा रही थी यजीदी फौज तो इन पाकों को, तो रास्ते में एक वाक़या पेश आया जो मुख्तसर बयान करता हूँ कि एक मुर्दा जो था ना उनको उन्होंने जिंदा कर दिया। जब जिंदा किया तो सवाल हुआ कि हुसैन के बेटे अली के पोते, एक तो बता बात कि इसको आपने जिंदा कर दिया मुर्दा को, तो जो नेज़े पर वो जो सर लटकता हुआ नजर आ रहा है उसको जिंदा क्यों नहीं किया? हजरत इमाम अली मकाम को उसको जिंदा क्यों नहीं किया? तो उसने कहा हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, वो तो पहले ही जिंदा है, जिंदा को जिंदा कैसे करें? तो बात ये है कि ये सादात हैं। मैं एक बात करता हूँ जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, ये नमाज में हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी ऐ अल्लाह दरूद भेज हजरत मोहम्मद करीम पर और उनकी आल पर और उनकी, यहाँ कोई बात अर्ज करूंगा जरा समझे। जैसा कि तूने मेहरबानी फरमाई, करम फरमाया इब्राहिम पर और इब्राहिम की आल पर, इब्राहिम पर और हजरत इब्राहिम की आल पर। नींद तो नहीं आ रही? बात बड़ी अजीब है, जो जिंदगी में करने लगा ना तो आप याद रखेंगे। आए अल्लाह तू बरकत फरमा मोहम्मद और उसकी आल पर, जैसा कि तूने बरकत अता की इब्राहिम को और उसकी आल को। अच्छा, ये जो हम बाज मुफस्सरीन वो झगड़े को खत्म करना हो ना, तो हो सकता है मैं यहीं आता हूँ आप लोगों की तरफ, जहाँ मैं मसले को थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ ना। तो बात यह है कि एक मरतबा एक मस्जिद में हम गए, यानी कि नमाज फजर अजान अभी होने वाली थी फजर की, तो कहीं गए हुए थे तो सोचा कि रास्ते में शायद कोई इंतज़ाम हो ना हो तो इस मस्जिद में नमाज पढ़ लें। तो वहाँ कुछ लोग बहस व मुबासा कर रहे थे, तवज्जो करना। एक का मैंने नाम पूछा, उनका नाम था सैयद फरहत शाह। एक का नाम पूछा, वो थे यूनुस अंसारी। एक का नाम पूछा, वो थे मोहम्मद शरीफ लोहार। तो ये तीन आदमी जो फरहत शाह थे वो कहते थे कि नमाज हाथ छोड़कर पढ़नी चाहिए। जो यूनुस अंसारी था वो कह रहा था कि हाथ ऐसे इधर बांध कर नमाज पढ़नी चाहिए। जो मोहम्मद शरीफ था लोहार वो कह रहा था कि नहीं, हाथ नाप के थोड़ा सा नीचे इधर बांध कर नमाज पढ़नी। तो मसला हल नहीं हो रहा। कहने लगे कि पीर साईं आप तशरीफ लाए तो इस मसले को हल करें। मैंने कहा जी मैं कौन होता हूँ हल करने वाला? जो मुद्दा थे एक मसला ज़ेर बहस हो तो मैं उसको कैसे हल कर सकता हूँ? बहरहाल इतना कह देता हूँ कि शाह जी आप बताएं कि हाथ छोड़ना ये फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है? उन्होंने कहा सुन्नत है। अच्छा, अगली बात मैंने कहा जनाब यूनुस साहब ये बताओ कि हाथ सीने के ऊपर बांधना ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है? उन्होंने कहा जी सुन्नत है। तीसरे साथी से पूछा, उन्होंने भी कहा भी सुन्नत है।
नाप के थोड़ा सा नीचे हाथ बांधना नमाज की हालत में, जरा समझो। मैंने कहा एक बात तो बताओ, तमाम पूरी उम्मत का ये उलमा का फैसला है कि नमाज की अगर फर्ज उसमें कोई कोताही हो जाए तो सजदा सहू करने से फर्ज अकमल मुकम्मल हो जाता है, अगर वाजिब रह जाए तो वाजिब की कसाई नहीं है, इसलिए वाजिब का एहतराम ज्यादा करो ताकि अदा हो जाए, और सुन्नत रह भी जाए तो नमाज हो जाती है, सुन्नत रह भी जाए तो नमाज हो जाती है, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है जिनकी सुन्नत है, हो जाती है। तो फिर झगड़ा किस बात का, झगड़ा तो है ही नहीं, मसला समझना हो तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर और हुजूर की आल पर हम दरूद पढ़ते हैं नमाज में। बाज उलमा के नजदीक अत्तहियात कादा के बाद ये जो है दरूद शरीफ ये वाजिब है। बाज उलमा फरमाते हैं कि अगर ये रह जाएगा तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि वाजिब है, इसकी कसाई तो है नहीं। मैं बाज उलमा की बात कर रहा हूँ, तमाम उलमा की नहीं। अच्छा, अगली बात ये है कि इसमें चलो ये तो हम दरूद पढ़ रहे हैं कि कमली वाले और उसकी आल पर, तो ये जो है इब्राहिम और उसकी आल पर, तो इब्राहिम और उसकी आल कौन है? वो जो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में पैदा हुए वफादार, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुतलिब। जरा तवज्जो फरमाए, कभी ये ना सोचना कि वो तो हुजूर के ज़हूर से, वो तो 6 माह पहले दुनिया से चले गए थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने तो जो है जी कलमा नहीं पढ़ा। अरे बाबा, उन पर तू दरूद नहीं भेजेगा तेरी तो नमाज नहीं होगी। वो हुजूर के आबाओ अजदाद हैं। एक आदमी ने मुझ पर सवाल किया एक मर्तबा कि जी अकेले हजरत अब्दुल्ला या अम्मा आमना तो नहीं आते, अबू जहल भी तो अब्दुल मुतलिब का बेटा था, अबू जहल भी तो अब्दुल मुतलिब का बेटा था। तो मैंने अर्ज किया कि अबू जहल जितना हक उसका था उसको मिला है। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा उसको तुम लानती कह सकते हो, खबीस कह सकते हो, बदबख्त कह सकते हो, लेकिन उसको माँ की गाली नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी माँ है वो पैगंबर की दादी है। उसकी बहन को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि जो उसकी बहन है वो हजरत मोहम्मद करीम लजपाल की वो जो है फुफी लगती है। उसकी बेटी को गाली नहीं दे सकते, उसकी कजन और बहन लगती है। यार इतना लिहाज थोड़ा है। बेशक काफिर था, मुकाबला किया और दीन के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन मेरा कमली वाला ऐसी रहमत है, ऐसी रहमत है कि कुछ न कुछ फायदा अबू जहल को भी हो गया। तवज्जो है, मैं गरीब की तरफ थोड़ी सी तवज्जो फरमाओ ना, अजीब सा मसला है। अच्छा, फिर अगली बात आ गई कि आल से मुराद, तवज्जो करना, आल से मुराद सिर्फ और सिर्फ सादात है। मैंने कहा ऐसे ना कहो, ऐसे तवज्जो है। हाँ, जाकर बैठो, जाकर। हाँ जी, वो वाकया भी याद रखना कि जुमे का रोज था, 10 मुहर्रम थी, तो कोई कह रहा था कि हुसैन को जल्दी ज़िबह करो, जुमा कज़ा ना हो जाए। बात समझे हो? इसको ज़िबह कर दो ताकि हमारा जुमा जो है वो वक्त पर अदा हो सके। जुमा की पाबंदी तो कर रहे थे, मगर जिनकी वजह से जुमा नसीब हुआ उनको ज़िबह कर रहे थे। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक बात है, जिन्होंने कुरान का मुताला किया, कुछ लोग कुरान का मुताला करते हैं, कुछ लोग जैसे हजरत जी ने फरमाया कि मेहनत से वाक़यात इकट्ठे किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मसरूफियत का दौर है और बड़ी मुश्किल होता है वाक़यात को एक, यानी तमाम मोहतियों को एक ही लड़ी में परो देना, ये आसान काम नहीं है। अच्छा, कुरान कह रहा है वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, वअग़रक़ना आला फ़िरऔन। अल्लाह फरमा रहा हमने गरक किया फिरौन की आल को। यहाँ सवाल पैदा होता है कि उसकी औलाद तो थी नहीं, बाज़ रवायात में आता है कि एक बेटी थी, बेटा कोई नहीं था। बात समझ रहे हो? तो गरक कौन हुए थे?
फिरौन के साथी साथी दरियाए नील में गरक हुए थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम का तआकुब करने की कोशिश की तो दरिया में गर्क हो गए। तो मैंने कहा बाबा सोचो, इसमें एक राज की बात बताने लगा हूं कि 7,29,000 सहाबा में से 40,000 का चुनाव हुआ। इसकी तस्दीक हिंदू किताबों में भी मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। और उसका चुनाव हुआ तो 540 निकले। 540 का जब चुनाव हुआ तो सिर्फ 40 आए। 40 को जब देखा गया तो उसमें 10 निकले। जब 10 को फिर छांटी की गई तो 4 निकले। कौन थे वो 4? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये 4 निकले। मैंने कहा आगे सुनिए जरा, बात समझने की है। मैंने कहा जितना किसी का हिस्सा था उतना उसको मिलता गया। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सहाबा का इनकार करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अहले बैत का इनकार करते हैं। ये इनकार ही है ना कि अहले बैत को करबला में ज़िबा कर देना। ये इससे बड़ा इनकार क्या हो सकता है? समझ रहे हो? जिसने कलमा दिया, जिसने नमाज अता फरमाई, जिसने हमें कुरान दिया, उसी की औलाद को ज़िबा किया जाए, इससे बड़ा मुनकर कौन हो सकता है? बात को समझो। मैंने कहा बात ये है कि इनमें से साथियों में से कुछ ज्यादा करीब हुए। जैसे चुनाव हुआ ना, आखिर में 4 बचे। इसी तरीका से ये भी चुनाव हुआ है कि फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे सहाबा सितारे हैं और मेरी अहल बैत जो है ये सफीना है, ये कश्ती है। बात को समझ रहे हो? तो बात ये है कि ये सारी की सारी बातें जो हैं ये हमें बतानी चाहिए, ताकि हमें आज हम मिलाद मनाएंगे ना तो ये जो है इसको आज एक नुक्ता नोट करो। जो मेरे प्यारे हैं वो आज के बाद ये कभी ना कहें कि हम मिलाद मना रहे हैं, वो कहें कि हम मिलाद पढ़ रहे हैं। पढ़ना और होता है, मनाना और होता है। मनाते कुछ आम लोग होते हैं, जो पढ़ते हैं वो खास होते हैं। सुभान अल्लाह। तो हम भी इस वक्त मिलाद पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिलाद पढ़ रहे हैं। मेरे आका का, मेरे मौला का, मेरे पाक महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हम पढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक बात और है। अब रहा मसला कि सादात का क्या मकाम है। हम लोग कहते हैं जी फलाना सैयद तो है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता। वो नमाज नहीं बेहतर बात समझे, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो ये उसका और अल्लाह का मामला है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि सारी जिंदगी मैं तहकीकों में लगा रहा, हर मसले की तहकीक करता रहा, हर आदमी के बारे में उसके ऐब ढूंढता रहा, मगर जब कुरान की ये आयत पढ़ी जो मैंने अभी तिलावत की है, वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, कि हर किसी को हर किसी के बारे में पूछा जाएगा। मेरे से तुम्हारे बारे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा। हर किसी ने अपना हिसाब देना है। तो इसमें एक बात है कि ये जो सादात थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये ऐसा क्यों ना करते? जो कुछ उन्होंने किया, मुर्दों को जिंदा किया, ये सब कुछ किया, ऐसा क्यों किया? क्यों? इसलिए कि ये मखलूक ही अजीब है। ये क्या कहने इनकी शान के, क्या कहने इनकी शान के। इनके मुतल्लिक वो है ना कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे प्यारे, आज हम एक काम करेंगे कि किसी को मौका न मिले कि ये नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ मिलाद मना लेते हैं, मिलाद पढ़ते हैं, बस जो कुछ मिला खा पी कर दुआ करके चले गए, ये नहीं है। हमें नमाज सीखनी चाहिए। नमाज क्यों नहीं सीखते? इसलिए कि हम सोचते हैं कि जब मौलाना के पास जाएंगे तो वो मुस्कुरा कर कहेंगे अच्छा
मैं तो तुझे कुछ और समझता था, तुम्हें तो नमाज ही नहीं आती। अरे बाबा, सिखाने वाले भी वो तरीका अपनाएं कि सीखने वाले बेधड़क होकर आपकी खिदमत में आ जाएं। तो मेरे प्यारे, नमाज जो है इसको सीखो। नमाज ऐसी चीज है कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह प्यारे शेख फरमाते हैं कि नमाज अल्फाज सही हो, अल्फाज और इसका तर्जमा आता हो, और दिल जो है ये मुकम्मल तौर पे खाना काबा की तरफ लगा हुआ हो, तो नमाज जो पढ़ोगे ना तो दुआ नहीं भी मांग सके तो फिर भी आपकी मुश्किलें अल्लाह आसान कर देगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि नमाज बजाते खुद एक दुआ के जुमरे में भी आती है। तो इसलिए हमें नमाज का एहतमाम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए जी। और हमें कम से कम इतना हो कि चंद सूरतें भी जो हैं उनका तर्जमा हमें आना चाहिए। हमें पता तो हो कि हम कौन हैं, समझ रहे हो? शेर का बच्चा भेड़ों में फिर रहा था, तो चलते चलते एक दिन ऐसा आया जंगल में, शेर के बच्चे को शेर मिला। तो वो कहने लगा, यार तू भेड़ों में कहाँ फिरता है? तू तो एक मर्तबा बोले सारी भेड़ें या भाग जाएंगी या मर जाएंगी, तू तो शेर है। उसने कहा, नहीं भाई, मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो शेर नहीं हूँ। उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, जिस तालाब पर पानी पीने के लिए जाओ तो गौर से देखना कि इनकी शक्ल तुमसे मिलती है। अगर मिलती है तो तुम भेड़ हो, नहीं मिलती तो जरा जोर से गर्जना। तो शेर ने ऐसा किया, देखा कि मैं तो कुछ और नजर आ रहा हूँ। तो जब जोर से बोले तो भेड़ें कुछ भाग गई, कुछ मर गई, और उसको पता चला कि मैं शेर हूँ। हमें तो अभी तक ये भी पता नहीं कि हम इंसानियत के फर्ज को नहीं समझते कि इंसान किसको कहते हैं। मुसलमान होना बात की बात है, आशिक रसूल होना बात की बात है, कम से कम इंसान तो बने। जब इंसान हम बनेंगे हमें वजू करना आएगा। अब ये भी हो सकता है कि कोई साथी कह दे कि बुलाया था, तुम आए थे, तुम तो वजू की बात करने लगे। अरे बाबा, हमारा वजू जो है ना ये सही हो जाए, हमारा गुस्ल सही हो जाए, ये सारी की सारी बातें हमारे दुरुस्त हो जाएं, नमाज के अल्फाज सही हो जाएं, नमाज का तर्जमा आ जाए, और फिर पढ़ने का मजा आएगा। ये चीजें हैं। और एक बात मैं अभी कर रहा हूं, मैंने देखा है कि काफी सारे लोग जो हैं वो बाज़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जब वो वजू करते हैं तो उनका वजू तो मुकम्मल नहीं था। वजू शैतान के लिए तलवार है। जब वजू ही सही नहीं तो शैतान कैसे डरेगा भाई? वो तो तंग करेगा। इसलिए शैतान जो है, उसके शयातीन जितने हैं वो इंसानों को गुमराह करने के लिए कोशिश करते हैं। और आखिरी बात ये करने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकद्दस पर कभी ये न सोचना, उसकी आल के बारे में भी और पीरो मुर्शिद के बारे में भी, कि ये बात क्यों है, ये ऐसे क्यों है, फलाना मसला क्या है, ये क्यों है, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। उनकी हर बात हक पर है, को समझने वाला हो। मजलिस लगी हुई है सहाबा इकराम की, उस मजलिस में एक शख्स खजूरों का टोकरा लाया। खजूरों का टोकरा लाया। बस सिर्फ आप जाग रहे हैं यार, ऐसी बात तो नहीं है यार, ये तो ज़हन साजी हो रही है। मैं कोई तकरीर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सबक सुना रहा हूँ ताकि इसको आप भी याद कर लें, मैं भी याद कर रहा हूँ। तो खजूरों का टोकरा लाया। मेरे आका ने किसी को 2 सेर खजूरें दे दी, और किसी को 1 किलो दे दी, किसी को 1 मुट्ठी भर दे दी, किसी को 2 खजूरें दे दी, किसी को आधी खजूर दी। तो एक शख्स बैठा था वो भी सहाबी, कलमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ता था, मगर जोश में आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तेरे बारे में तो ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तुम तमाम जहानों के लिए रहमत हो। लेकिन ये क्या है, नबी तो अदल करते हैं, ये अदल है, किसी को 2 सेर खजूरें और किसी को आधी खजूरें।
गुस्से में इतनी बात करके चला गया। पीछे मौला अली ने तलवार उठा ली कि मेरे आका की इसने गुस्ताखी की, तवज्जो करना। जब वो गया तो वो मस्जिद में नफल की नियत बांध कर खड़ा था। मौला अली वापस आ गए, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अली वापस, या रसूलल्लाह वो तो नमाज की नियत बांध रहा है, वो तो नमाज पढ़ रहा है। फरमाया ऐसे मेरी उम्मत में लोग होंगे जो नमाज भी पढ़ेंगे मगर मुनाफिकत करेंगे, मुझसे मोहब्बत जैसे करनी चाहिए ऐसी नहीं करेंगे। जैसी मोहब्बत मुझसे करनी चाहिए ऐसी नहीं करेंगे। उम्मत में क़यामत तक ऐसे लोग भी होंगे। क्यों कि अगर वो आशिक सच्चा होता तो यूं कहता कि जो कुछ मेरे महबूब ने फरमाया वो हक है। वो तो इतराज कर रहा है, वो तो मेरे प्यारे तवज्जो करें, बात ये है कि नहीं, हम सारे के सारे अगर नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे ना तो जहन में रखें नमाज की पाबंदी ये जरूरी है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार का होना वो क्या है। कुछ कह देंगे कि नमाज पढ़ी तो बस इतना प्यार काफी है, कुछ कहेंगे कि नमाज पढ़े न पढ़े चांद नारे लगा दें इतना प्यार काफी है। लेकिन एक बात याद रखो, हजूर और हजूर की आल की मोहब्बत दिल में रखना और जो निजाम अल्लाह ने दिया है उस पर पूरा पूरा अमल करना। कुरान कह रहा है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो कुछ मेरा नबी दे वो मजबूती के साथ झोली में डाल लो। जिस बात से मेरा कमली वाला मना करे तुम मना हो जाओ। अल्लाह की नाराजगी से डरते रहो क्योंकि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। मैं चंद हदीसें यहाँ बयान कर दूं और आप सब लोगों को एक सर्टिफिकेट दे दूं कि आप बख्शे गए, आप बख्शे गए। तो मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल आप लोग देख रहे हो क़यामत का दिन हो और वहां मेरी पिटाई हो रही हो। इसलिए हमें डरना चाहिए, अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहिए। कमली वाले आका से मोहब्बत इस कदर की जाए जैसे हुजूर के सहाबा करते थे, जैसे हुजूर के सहाबा करते थे। वो देख वो एक शख्स आ रहा है अल्लाह के महबूब की खिदमत में, तो फूलों वाली चादर ऊपर ली हुई है। अल्लाह के महबूब वो सलाम करता है तो मुंह इधर कर लेते हैं, वो इधर आता है तो मुंह इधर हो जाता है। वो किसी से पूछता है बाबा तुम काफी देर से बैठे हो, मेरा महबूब मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहा। तो जो करीब तरीन रहने वाले थे उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर जो चादर है ना ये आदमियों को जेब नहीं देती, हुजूर इसलिए खामोश है। वो घर गया, चूल्हे में चादर को जला दिया, चूल्हे में जला दिया, चादर को चूल्हे में जला दिया। समझ आ रही है। अच्छा फिर वापस आया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो चादर कहाँ है? या रसूलल्लाह मैंने तो चूल्हे में जला दी। फरमाया किसी को दे देता किसी का फायदा हो जाता, तो उन्हें चूल्हे में क्यों जला दी? तो रोकर हाथ बांध कर कहने लगा या रसूलल्लाह जो तुम्हें पसंद नहीं वो चूल्हे के काबिल है, जो तुम्हें पसंद नहीं वो चूल्हे के काबिल है। चादर महबूब को पसंद ना हो तो चादर चूल्हे में चली जाती है। खुदा न खास्ता अगर हमसे कोई बेदबी गुस्ताखी हो जाए तो हम अगर इस मामले में नापसंद हो जाएं तो फिर अपना फिक्र खुद करें कि हमारा ठिकाना क्या होगा। बात तो ये समझने की, अगर वो आमना का लाल महबूब रब्बे जुल जलाल अगर उसने मुंह फेर लिया तो चादर तो चली गई चूल्हे में, जल गई, राख बन गई, तो हमारा क्या होगा? अगली बात मैं करनी नहीं चाहता, हमारा क्या होगा? इसलिए आखिरी बात कि अपने आंखों को, अपने कानों को, अपनी जुबान को, अपने पांव जो हैं जिस्म के हर हिस्से को कोशिश करो कंट्रोल में रखो। क्यों? एक बात बड़ी काबिल गौर है, कल क़यामत का दिन होगा। कुरान में आता है वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। अल्लाह से अल्लाह पूछो जी तूने ये किया वो किया, अल्लाह फरमा रहा है जवाब क्या होगा? या अल्लाह तेरी कसम, या अल्लाह, या अल्लाह तेरी कसम, जरा जोर से कह दो या अल्लाह तेरी कसम, तेरी कसम हमने तो ये काम किया ही नहीं। जुबान से अल्लाह के दरबार में ऐसा कह देंगे, ऐसे लोग भी हैं। तो
तो अल्लाह फरमाएगा जुबान को चुप हो जा, फिर हाथ पांव जो है ये बोल कर बताएंगे कि हमारे साथ तूने ये किया था, चोरी की थी, धोखा किया था, दगा किया था। दिमाग बोलेगा तूने मेरे जो है ना गलत सोचा था, तू तो हमसे तू काम लेता रहा। अब एक सवाल पैदा होने वाला है, एक शख्स जो है कटहरे में खड़ा हो किसी अदालत में, उसकी बहन, उसकी माँ, उसका भाई, उसका कजन, ये सारे के सारे खड़े होकर जज साहब के सामने कह दें जी ये बड़ा जालिम है, बड़ा बदअमन है, बड़ा बेगैरत है, बड़ा उल्लू का पट्टा है। जब अपने ही खिलाफ हो जाएं तो उस वक्त उस आदमी पर क्या गुजरेगी जरा सोचो। तेरे ही हाथ हैं, तेरे ही पाँव हैं, तेरी ही जुबान है, तेरा ही दिमाग है। जब ये तेरे खिलाफ होगा, क़यामत के दिन गवाही देने के लिए खड़े हो जाएंगे, फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? नहीं यार, मेरा ख्याल है समझ आ रही है। फकीर आदमी हूँ, आपसे जो है ना दुआ की दरखास्त करता हूँ कि खुदा के लिए बात को समझो। और जब अपने ही खिलाफ हो जाए, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब अपने ही खिलाफ हो जाएं, हाथ खिलाफ हो जाएंगे, पाँव खिलाफ हो जाएंगे, दिमाग खिलाफ हो जाएगा, जुबान खिलाफ हो जाएगी, नाक खिलाफ हो जाएगा। अब आप सोचेंगे नाक खिलाफ हो जाएगा, ये क्या करेगा भाई? ये सिर्फ इस नाक से जुकाम के दिनों में पानी नहीं चलता, बल्कि नाक इतने कमाल की बात है, इतना नाक प्यारा है कि ये खुशबू और बदबू की पहचान करता है। खुशबू और बदबू की इतला देता है इंसान को कि ये बदबू आ रही है, ये खुशबू आ रही है, ये इतला देता है। ये सारे जब खिलाफ हो जाएंगे, हमारे पल्ले कुछ रहेगा? भाई मेरी बात समझ रहे हो? सारे समझ रहे हो? चस नहीं आ रही। कल बड़ी अजीब है, क्योंकि मौत का पता कोई नहीं, आज है या कल है या होने वक्त। तो कम से कम ये बातें तो याद रखने की है कि हमारे हाथ पांव अगर उस दिन जब सख्त धूप होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तब पर तांबा बन जाएगी, ऐसे हालात में अगर अपने ही अपने खिलाफ हो जाएंगे, हमें छोड़ देंगे, हमारे खिलाफ गवाही देंगे, फिर हमारा क्या हशर होगा? ये बात समझने की है या नहीं? उलमा से, बुजुर्गों से, प्यारों से, प्रोफेसरों से, मुफक्किरीन से, मुफस्सिरीन से, मुहद्दिसीन से ये आप लोगों ने सुना होगा कि अगर उस वक़्त ये जुबान झूठ बोलेगी ना, तो इसको चुप का हुक्म दिया जाएगा कि उसको तो खामोश हो जा, चुप हो जा। फिर ये हाथ पाँव ये सारी चीज़ें गवाही देनी शुरू करेंगी, अपने ही खिलाफ हो जाएंगे, तो फिर हमारा क्या असर होगा? आज तो हम मान करते हैं ना कि हाथ मेरे हैं, अहीं झुंझला कर कहते हुए तुमने जोड़ दो नहीं, लेकिन सोचो एक वक्त आएगा, अल्लाह माफ करे, ये हाथ ही खिलाफ हो जाएगा। ये हाथ तो सखावत करने के लिए था, हाथ तो गरीब के सर पर और यतीम के सर पर रखने के लिए हाथ का काम था। तू इसको यानी मुक्के ऐसे दिखाता है, ये तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा क़यामत के दिन। देखें, अभी गौर करो, अपने हाथों को देखो, ये तुम्हारे हाथ, ये तुम्हारे पाँव, ये तुम्हारी जुबान, ये तुम्हारा दिमाग, ये हर चीज बोल रही होगी या अल्लाह ये मुकर रहा है, हमसे ये ऐसे काम लेता रहा है। उस वक्त हमारा क्या बनेगा? तो भाई अगर कामयाब होना है तो फिर समझो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जरा जिक्र कर लीजिए थोड़ा सा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, जरा जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आंखें बंद करो, थोड़ा
थोड़ा सा जिक्र करके फिर दुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक जुबान के साथ अल्लाह 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 अल्लाह। आंखें बंद करके जोर से अल्लाह 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 अल्लाह। जो अंदर नामुराद बैठा ना गुमराह करने के, इसको भगा दो, अल्लाह की ज़रब लगाओ, अल्लाह आ जाएगा, ये खुद ब खुद भाग जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मदीने का तस्वर हो जैसे हमारे सामने अल्लाह के नबी का रोजा है। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम भाई दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ हाथ उठाएं, अल्लाह से मांगे भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। व क़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। या अल्लाह, ये महफिल मिलाद, ये पाक महफिल जिंद बड़ा साईं उन्होंने ये महफिल, इस महफिल को सजाया, इसका इंतज़ाम किया, जो मेरे प्यारों ने सरकार की तारीफ़ की, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान का तर्जुमे के साथ मफ़हूम के साथ समझाया। या अल्लाह, ये सारे का सारा हमारा जो है ये या अल्लाह खलूस के साथ इसको कबूल फरमा। या अल्लाह, परेशानियों से हमें निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें नमाज के एहतमाम की तौफीक अता फरमा और नमाज में हुजूर का इश्क नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, मेरे कमली वाले आका के नक्शा कदम पर हर अदा पर मर मिटने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे महबूब का वास्ता हम फकीरों को खाली झोली न वापस हटा। या अल्लाह, हम दामन फैलाए हुए तेरे दरबार में बैठ गए हैं। ये मेरे प्यारे सारे के सारे दामन फैला कर बैठे हैं। या अल्लाह, अपनी रहमत से सबकी झोलियों को भर दे। या अल्लाह, मेरे प्यारे जितने हाथ उठा बैठे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें नमाजों का एहतमाम करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, नमाज में तूने तमाम नेमतों का जिक्र कर दिया। अल्लाह, हमें नमाज जो है, इस नमाज की अजमत, नमाज की शान हमारे दिलों में अल्लाह डाल दे। अल्लाह, जो हाथ उठाकर बैठ गए हैं, या अल्लाह, ये मेरे प्यारे जितने आए बैठे हैं, या अल्लाह, जो कुछ यहाँ लंगर का इंतजाम जैसा भी हो, तो जो खाएं और जो आए हैं उनके लिए शिफा बना दे। या अल्लाह, उनके लिए शिफा बना दे। या अल्लाह, हमें उलमा के एहतराम करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, बुजुर्गान दीन के अदब करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, बेअदब को तू पसंद नहीं करता। ऐ अल्लाह, बेअदबी से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें इत्तबा करने की तौफीक नसीब फरमा। तेरे हुक्म माने और तेरे फरमा बरदार बन जाएं और तेरे पाक नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह उनके वफादार और ताबेदार बन जाएं। या अल्लाह, हमारी खताओं को माफ़ कर दे। या अल्लाह, हमारी खताओं को माफ़ कर दे। या अल्लाह, हम फकीरों की खताओं को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, हम गुनाह लेकर फिरते हैं, कोई आसरा नहीं। अल्लाह, हमारे हाल पर रहम कर दे। ऐ अल्लाह, हमारी बदियों को नेकियों में बदल डाल। ऐ अल्लाह, बुराइयों को अच्छाइयों में बदल डाल। ऐ अल्लाह, हमें वो राह हक राह मुस्तकीम नसीब फरमा और उस पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे पढ़ने में कोई गलती हो गई, हम सबको माफ़ कर दे। हमारे सुनने में कोई गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे।
اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. اس مجلس میں جتنے دوست بیٹھے ہیں، میرے جوان بیٹھے ہیں اور مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ایسے قبول فرما کہ جس میں ہماری بہتری ہو، جس میں ہماری کامیابی ہو. یا اللہ جو تیرے رضا والے کام ہیں ان کو کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس مجلس میں جو جند بڑا سائی نے اہتمام کیا ہے، یا اللہ پاک ساری کی ساری محفل کے اوپر رحمت نازل فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبنائہ وبناتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.